Yes, very good evening to everyone. Beginners query first, conceptual queries first. बिगिनर्स की कोई क्वेरी नहीं हो तो मैं सीनियर्स के पास जाऊं. एक मिनट वेट करता हूं. तो क्वेरी है तो बोलिए. आज ईओडी डेटा कब आएगा मालूम नहीं है. उसके बाद अवली डेटा कब आएगा, कैसे अपलोड होगा. टीम इज अवेलेबल. जब भी डेटा सोर्स आ जाएगा तो कितने भी बजे आए, 11 o'clock 12 o'clock, दे बी अवेलेबल एंड अपलोड. बट आए तो सही. उसके बाद ही सपोर्ट रेफरेंस लॉग डेली वीकली मंथली का अपलोड होगा. Then only trade setup pages also will be uploaded. Only then Snacks and Redis will be uploaded. तो हमको मैनेज करना होगा. देखिए, मैं लगातार देख रहा हूँ कि एक बार जो सीनियर्स की क्वेरी में ले लेता हूँ, उसके बाद में कॉन्सेप्चुअल क्वेरीज, प्रोसेस क्वेरीज इन बिटवीन बाद में पूछते हैं. समझ कीजिए. Okay, then let me move to the seniors. चेतन बोलिए. Sir, good evening, sir. Very good evening. Sir, can you take HDFC Limited weekly map PC no HG? जो कंसेप्ट जिसने सीखा नहीं हो, सिर्फ या नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं किया हो, और यहाँ पे अगर वो डिस्कस होता है और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा नहीं समझना कि मुझे कुछ नहीं आता है. हमने नहीं सीखा, नहीं समझना. HDFC नो. Yes, weekly map, sir. Uh, 22/2021 last week. Sir, can I just take you through sir? आपको एक बार. सर RMSL हायर ओपन हुआ. उसके बाद में क्लाइंबिंग बाय ट्रेड हुआ. देन दिस न्यू PDP जो था 2785, उसके पहले स्टॉप एंड इश्यू सेल हुआ, फिर न्यू PDP तक आया एंड रेजिस्टेंस से हो गया बंद. Okay, then we will go and see the lowest low of the week. 2714. So 2714.15. So it is coming in between FC 61.8 and FC 100. So 2692.95 is TPLS. No, we have to consider along with WDP. Okay. Yeah. So okay, along with WDP. So it will be 2533 straight away. Yes, but Okay. Learn to consider TPLS with traded value lower side.
Okay, so okay, can you just repeat sir એમાં કેવી રીતના લેવાનું આપણે? TPLS, TVLS. હા, that તો I know, but sir TPLS માં we have to take till WDP or whichever is the lowest low. Yes, and it will be always either FC 100% You are or FC FC 261.8. બરાબર છે, that is so true. Okay, so પછી I think there is no query only. Basic query if it is there. And this highest high is 2896. Then Huh, sir? TPH is RC 261.8. Yes. કેમ કે highest high is 2896, which is above આપણે CRC 100. So straight away it will go to the 3049. Consider TPHS 3112. 112. Okay. Cool. Okay. Sir, just one more query in 261.8. So I was studying some case studies yesterday night. So can you take Asian Paint, sir? Which time frame? Weekly March. What is the setup? 261 climbing by. (27/6 to 2020). नीचे. Can you sir open the plan? Sir, RMSL higher open. Again, there are two things. It has come till 261.8 and stop and wish to sell as upon at 330 on the Friday. But it has, no, sorry, 25th, no, it has happened. So sir, as per as per the understanding which you have taught us, 1456.65 is the target, sir. वो उनका ऑब्जर्वेशन है. ओके. ऑब्जर्वेशन से उनका जजमेंट है. ओके. और सीजनल लीडर्स वगैरह भी इसमें ऐड करना चाहिए. ओके. Very soon, maybe tomorrow itself, we will have one new testing record sheet summary and one new page known as post-closing tone. And in that, सबसे पहले I'll introduce all the three trade setup for 261.8, which will be available for on daily, weekly, and monthly time frame. Weekly and monthly will be available from 1995. Daily will be available from 2018. All the three scenarios of 261.8. And historically also, and latest, what are the scripts are trading under what scenario currently, that also we'll get. So then you study and then you decide. मैंने अभी तक ऐसा कुछ explain नहीं किया है. There are some conditions like it should be trading with multiple ladder or complete around by. जैसे यहाँ पे it is trading with complete around by, right? Then multiple snakes have not come. It is only light, so it is trading with multiple ladder. Then here only single snake has come, multiple snake has not come. So it is trading with buy house only. And this is the judgmental process which I will formulate, I will frame, and then I will share with you. Very effective and easy trade setup. ये सब जो मैं कह रहा हूँ वो सब हम फ्रेम कर देंगे. So multiple ladders, complete around buy, and stopping is to sell from climbing by 261.8%
is nothing but correction sell till Hmm. WDP, the lower band. Hmm. Later on, from 1591, whenever low time frame trades with support, it will manage to trade this 1828 also. Okay. It is not every time that it will approach Every 1.8. बाइंग के जजमेंट में ये तीन बात अगर मैं आपको सिखा लूं, या तो आप सर सीख હું લખી जाओ, લઉં तो if इट you विल बी don't mind. अवेलेबल है और 100 बार कहा गया है, लेकिन मैं समझा नहीं पाया हूँ। अगर अल्टीमेटली अगर शिक्षा से कुछ लेना है तो ये ले लो। 3 types of rise in price and 3 types of decline in price. ये मेरे ट्रेडिंग करियर पूरे लाइफ का मेरा ये एक्सट्रैक्टेड एसेंस है। इतना अगर समझ गए तो सब कुछ समझ गए। There is 3 types of declining price and 3 types of rising price. Buying का judgment हो and any declining price till the support is known as retracement. Last point. Declining price and trading with support. So here it is mentioned any declining price is a retracement. Avoid selling completely irrespective of trading into buying judgment or selling judgment. जब भी भैया सपोर्ट से चल रहा है, चाहे बाइंग का जजमेंट हो या सेलिंग का जजमेंट हो, any decline in price is either minimum retracement or maximum retracement until support is not traded. Second decline in price. Now this is at this period on June 2020, it is trading into buying judgment or selling judgment. Buying judgment, sir. Complete around by multiple laders. Complete around by multiple laders. 1 minute. क्या हुआ? Am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Am I audible? हाँ सर, yes sir. Okay, ठीक है। Sir, I can't hear you. Hello. Now? Now I can hear you, sir. Asian Paint, you said it is trading into buying judgment along with multiple levels and complete around buy, and it is trading with support or resistance. Support थी सर चाले से. Complete. यही तो कहता हूँ ना, मैं नहीं समझा पाऊंगा, आपको समझना होगा। ये स्टॉप एंड यूज टू सेल चल रहा है, मतलब सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस है? सर रेजिस्टेंस है वो तो फिर आप सपोर्ट क्यों बोल रहे हो चेतन? नहीं सर, मेरे को लगा कि ऊपर से मतलब बाइंग के जजमेंट में है, मतलब वही सॉरी बाइंग के जजमेंट में रेजिस्टेंस चल रहा हो तो इट इज नोन एज करेक्शन सेल। करेक्शन सेल, यस, until it is going into selling judgment. So ये हाँ. पोजिशनल ट्रेडर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, तो हम करेक्शन सेल इसलिए लैंग्वेज यूज करते हैं कि शायद ट्रेडर्स के लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, सेलिंग के सेटअप में तो होगी,
But for the position traders, investors, in a buying judgment, though it might be trading with resistance, but buying judgment is intact until multiple snake occurs or complete round sell occurs. So any decline in price, though it is trading with resistance, is known as correction sell. करेक्शन से तो यहाँ पे लिखा है नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड टू सेल, डिक्लाइन इन प्राइस विथ रेजिस्टेंस इज करेक्शन सेल, पार्टिसिपेट ऑन रिट्रेसमेंट एंड बी ऑन लो प्रोफाइल। मतलब कि यहाँ पे हम बेच तो सकते हैं लेकिन रिट्रेसमेंट भी बेचना है, लो प्रोफाइल में रहना है, क्योंकि अल्टीमेटली वो बाइंग के घर में है, बाइंग के घर में ही है, बराबर है। और आप सीधा RC 261 से FC 261.8 ऐसी लैंग्वेज हम यूज करेंगे तो पूरा व्यू सेलिंग का हो गया, बेरिश हो गया। ओके, So it is a correction sell until WDP not traded or it is not coming। तो देखो आगे क्या होता है, यही तो पूरा थॉट प्रोसेस है ना, यही तो क्राउड साइकोलॉजी है कि इस करेक्शन सेल में बाइंग का जजमेंट हो और इस करेक्शन सेल में अच्छे अच्छे क्राउड जो है बाइंग की पोजीशन फेंक देते हैं, निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं। ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट इट इज नोन एज व्हाट करेक्शन सेल। अगर आपको मालूम है कि करेक्शन सेल है तो कौन सा ट्रेड है, नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड टू सेल है, नॉन ट्रेडिंग ट्रेड टू सेल। और वहां से जैसे ही बाजार घूमता है वी हैव टू, जैसे हमारे पास है ना ICRC हायर गैप कैचिंग द फॉलिंग नाइफ, इट इज ए नॉन ट्रेडिंग सेल, बराबर। 3+1 JGD in FC and ICRC opens and approaches JGD is nothing but correction sell, non trending trade। and just observe how it is behaving, कहां तक आया वो टूट के, BDP 1650 है तो पहले 1650 तो तोड़ने दो, राइजिंग चले से तो बाहर निकलने दो, इसी प्लान को पकड़ के रखो। इट इज नॉट गोइंग इवन बिलो द ड्रिफ्टिंग सेल 1654 ऑल्सो, यस। वो ट्रेड करेगा तो लोअर बैंड आएगा, लोअर बैंड ट्रेड करेगा तो 100% आएगा, 100% ट्रेड करेगा तो ही तो 261.8 आएगा ना। ओके, लंबा चल, तो सीधा एक लाइन में बोलोगे RC 261.8 से FC 261.8 आएगा तो कैसे चलेगा ना भैया। यस, यू आर राइट सर। प्राइसेस आर राइजिंग, इस अकरेंस पीरियड का कम से कम PCR PCDS तो पकड़ के चलो। Prices stop rising and start falling, and prices when it will continue to fall further, prices are rising or falling, when it will continue to fall further, when 16 will retreat on a lower side, yeah, when it will stop declining and start rising, when 1712 trades on higher side, तब तक ये दोनों के बीच में 1 2 3 हफ्ता पड़ा रहा, ना 1712 ट्रेड किया ना 1654 ट्रेड किया। यहाँ भी 1712 ट्रेड किया भी होगा तो स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, तो 1712 से 1654 आया। अब ये दोनों के बीच में ये 3 हफ्ते तक पेंडुलम रहा, फिर 1712 ट्रेड किया तो आपका वो कहां से आएगा बोलो मुझे, वापस वो 18 जो है वो आ गया और वो ट्रेड कर लिया तो कहां चला गया। जैसे ही वो रेजिस्टेंस ट्रेड किया उसको हम करेक्शन सेल कंप्लीटेड अपट्रेंड भी बोल सकते हैं, बिगिन या तो रिवर्सल बाय भी बोल सकते हैं। कोई एक्टिव शिक्षा थोड़ी है जो एक लाइन में फ्रेम कर दिया और ऐसे बाय करो ऐसे सेल करो, FRR और FRO स्टॉप इट यूज टू बाय अबाउट WDP, स्टॉप इट यूज टू सेल बिलो BDP और अक्यूमुलेशन 5 लाइन में फ्रेम करके दे दिया, वैसा तो नहीं है ना ये। आपको चाहिए 20-25 थोड़ा तो सोचना चाहिएगा ना, और सोचने में है क्या, बस ये 3 ही है। सपोर्ट से चल रहा हो तो एनी डिक्लाइन इन प्राइस इज ए रिट्रेसमेंट, डोंट सेल। एंड करेक्शन सेल से चल रहा हो मतलब बाइंग का जजमेंट है एंड ट्रेडिंग विद रेजिस्टेंस इज ए करेक्शन सेल। एंड करेक्शन सेल में एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी, थॉट प्रोसेस सब वो भी फ्रेम है। खाली आटलूं तो विचार से चेतन कि अकरेंस पीरियड का PCDS ट्रेड करेगा तो लोअर साइड ट्रेड करेगा, PCI ट्रेड करेगा तो वापस बढ़ना चालू हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा व्हाट वी कैन डू इज 1712 का 1725 हायर साइड लेंगे एक्सटेंडेड, और ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें
चलो 1761 हाई भी है, 1743 है, ये सबका एक्सटेंडेड क्या हुआ 1763 है, 63। तो वी कैन एक्सटेंड द पीसीआर टू 1763 टू बी ऑन सेफर साइड। बट बाइंग का जजमेंट है और पीसीडीएस लोअर साइड ट्रेड नहीं करता हो, तो यहाँ पे ये भी समझ में आना चाहिए कि 3 हफ्ता हो गया पीसीएस ट्रेड नहीं कर रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम्स में अगर हम क्लू लेते हैं क्या हो रहा है, शाम को बैठ के देखो, खाली जरूरत नहीं है, स्क्रीन फ्री ट्रेडिंग है ये, शाम को बैठ के देखो, एक्टिव शिक्षा दिमाग में लाओ कि व्हाट डेली ट्रेडिंग इज डूइंग, डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, पीसीएस पीसीआर स्नेक से लेडर्स ट्रेड करके चल रहा है, फ्रेश सपोर्ट लेके चल रहा है, फ्रेश रेजिस्टेंस ही नहीं दे रहा है, लोअर बैंड ही ट्रेड नहीं कर रहा है, इस दिन कर दिया सो कर दिया, उसके बाद कर ही नहीं रहा है, तो उसका इरादा क्या है, 1654 उसको लोअर से ट्रेड नहीं करना है। तो ये 3 हफ्ते से करेक्शन सेल में होता क्या है, accumulation. Ultimately, we have to come to this one line: what the big heads are doing, accumulation or distribution. बट मैं आपको, मैं कल ये ट्रेड सेटअप पेजेस देने की सोच रहा हूँ, यहाँ पे टेस्टिंग रिकॉर्ड शीट समरी पोस्ट क्लोजिंग टोन जो कंटिन्यूस 8-9 महीने से बन रहा है, तो मुझे तो आज ही मेरा मोटिवेशन खत्म हो गया देने का, कितना स्पिरिट था मालूम है कि दे दूंगा, और आप सीधा एक लाइन में बोलते हो कि भाई बस RC2 61.8 से FC2 61.8 आएगा। ऐसा कब सीखा, कब सिखाया, कब बोले? There are so many things we have to follow, no, in process. और so many things में है क्या? Prices when it will continue to fall further, and when it will stop falling and start rising. और उल्टा करेक्शन सेल होकर अगर 1828 ट्रेड कर लिया तो लड्डू है, कहाँ का कहाँ चला गया वो, और 1828 वापस तोड़ेगा ही नहीं, 2069 से 1907 ही आया। See where it is today. उसके बाद में दूसरे क्लाइंबिंग बाय ड्रिफ्टिंग सेल कितने आगे होंगे, सिर्फ 261.8 261.8 नहीं है, बाइंग का घर या सेलिंग का घर तो डिसाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। समझे जी चेतन? हाँ सर, यस सर। I will have to give a rethought whether to introduce 10 trade setup as per PCS PCR में, बोला धीरे 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 है ना, सब रेडी हो जाएगा, कल परसों सब ट्रेड सेटअप रेडी हो जाएंगे, बट आई एम थिंकिंग ऑफ गिविंग वन फर्स्ट, फिर उसकी पूरी सीरीज में चालू करने की सोच रहा हूँ, तो उसका वेबिनार ही अलग रखेंगे, जिसको आना है वही आवे, जो नहीं आ सकते उसको नहीं आवे, वीकली वंस वेबिनार ही अलग रखने की सोच रहा हूँ मैं, उनका ग्रुप ही अलग बनाने की सोच रहा हूँ ताकि वो लोग डिस्टर्ब नहीं हो, बिकॉज पोस्ट क्लोजिंग टोन जो उसको ट्रैक करना पड़ता है, उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बावजूद भी उस व्यू को पकड़ के रखना पड़ता है, और फिर वापस ट्रेड इनिशिएट करना पड़ता है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में जाके मैं सिखाने की सोच रहा हूँ, और आप एक सेंटेंस में ऐसा बोलते हो, कोई नया बोलता ना चेतन, इट इज ओके यार, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, सॉरी सर। ऐसा बोलते हो ना तो मेरा मोटिवेशन खत्म हो जाता है, आई एम टेलिंग ओपनली, वाइंड अप कर देता हूँ मैं, कल ही क्या है, बना दिया छोड़ दो, डर लगता है यार, जो अच्छा चल रहा है, इतना बढ़िया चल रहा है, उसको भी बिगाड़ दोगे तो कैसे होगा। यहाँ पे एक और क्लाइंबिंग बाय 261.8 इज स्टॉप एंड टू सेल, जो लोग भी सुन रहे हो समझ ले, नए ट्रेड आएंगे, पोस्ट क्लोजिंग टोन के ट्रेड सेटअप आएंगे, ईच एंड एवरी ट्रेड इज नॉट लेस देन 10%, नॉट लेस देन 10%, लेकिन हाथों हाथ आज सीखा और कल ट्रेड लेना है, अगर वैसा एटीट्यूड हो तो प्लीज मत सीखिएगा, टेम्परामेंट बनाओ, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पे आप खुद स्टडी करो कि कैसे होता है, क्या हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद में अडोप्ट करना, कहीं नहीं जा रहा है मार्केट। और सोच प्रैक्टिस करते समय है ना, दो बात होती है, प्रैक्टिस करते समय दो बात होती है, तो ट्रेड सेटअप की एक्यूरेसी पता चल जाती है, दूसरा मेरा टेम्परामेंट बन जाता है उसको अडोप्ट करने का, और तीसरा उसमें स्टॉप लॉस वाले भी ट्रेड रहेंगे कि जिसमें लॉसेस भी हुए हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट हो रहा है ये समझ में आएगा तो मैं कंसिस्टेंटली उसको कर पाऊंगा। बट मैं आज सीखा और कल बस एक लाइन में बोल दिया कि भाई 261.8 से घुमा दो, FC 261.8 आएगा, दैट इज वेरी डेडली एंड डेंजरस स्टेटमेंट यार।
मत करो ऐसा। एंड Sure. वन डिक्लाइनिंग प्राइस इज, देखो कोई नया रहता है तो मैं उसको इतना बोलता भी नहीं, बहुत प्यार से जवाब देता हूँ उनको, धीरे धीरे पुचकार के सिखाता हूँ मैं। बट आई कैनॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दिस, चेतन। और आप जिस Sure. लेवल पे और आपको जिस लेवल का काम संभालना है और संभाल रहे हो, ऐसे इसमें नहीं चलेगा, बिकॉज यू आर हैंडलिंग अदर्स फंड्स। Sure, sir. मैं डांट नहीं रहा हूँ, Sir, सॉरी, अपसेट हूँ। नहीं 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 आई सर, एम वो अपसेट। फर्स्ट वाला भी आई नो। तो फर्स्ट थिंग इज, सपोर्ट से चल रहा हो तो ये डिक्लाइनिंग प्राइस इज रिट्रेसमेंट। रिट्रेस में बाइंग के जजमेंट में हो प्लस रेजिस्टेंस से चल रहा है तो इट इज नोन एज करेक्शन सेल। करेक्शन है, ठीक है। और ये तो जो सपोर्ट से चल रहा हो और एनी डिक्लाइनिंग प्राइस, वी आर नॉट वो तो सपोज टू सेल, वी शुड लुक फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी इफ बाइंग जजमेंट इज देयर। और ये करेक्शन सेल है तो ले सकते हैं, लेना चाहिए। 1654 तोड़ता तो लोअर बैंड आ जाता, लोअर बैंड तोड़ता तो आप उसको वैसे FC100 FC 1.8 आ जाता। पीसीडीएस ही नहीं ट्रेड किया तो कहाँ से आएगा? ओके, नोटेड। 3-4 द्वार है यार FC 261.8 तक पहुंचने के लिए। एंड दिस सेल वी कैन डेफिनेटली टेक, ओके। टेक करेक्शन। जहां जहां बड़े मेजर मूव मिलते हैं, छोटे छोटे मूव के लिए करेक्शन सेल नहीं बेचना चाहिए, लेने की कोशिश करनी चाहिए। व्हेन करेक्शन सेल कंप्लीट्स एंड ओरिजिनल अपट्रेंड बिगिंस, फिर बाइंग करें। एंड दिस इज रियली ट्रेडेबल, फर्स्ट वन कि सेलिंग का जजमेंट एंड इट इज ट्रेडिंग विद रेजिस्टेंस, जो हम कर ही रहे हैं। लेकिन वो बात हम नहीं कर रहे हैं ड्यूरिंग मार्केट अवर्स, ड्यूरिंग टेकिंग ट्रेड, चाहे मेरा ट्रेड है या नहीं है। बाजार में इतने सारे ट्रेड्स है, तो हमेशा देखो कि एवरी राइज इन प्राइस जो है, एवरी डिक्लाइन इन प्राइस है, ये तीन में से फिट करना सीख गए ना चेतन। न्यूज इवेंट इंफॉर्मेशंस, ओपिनियंस एंड एडवाइजेस की तो बात छोड़ दो, कोई हाथी मार्केट लिटरेट रहा ना, वो भी आपको टच नहीं कर सकता है। आई गॉट इट। अरे राइज इन प्राइस एंड फॉलिंग प्राइस आल्सो विल नॉट एक्साइट यू। करोगे? Karu sir, yeah. So I think next week I will just share some of the case study from 261.8 on the six types of price and fall in price. I'll share you the feedback on the same. And I think just one. बाइंग सेलिंग जजमेंट के साथ करो यार। Done. कितना इजी बना दिया ये स्नेक्स एंड लेडर्स, एकदम साइन होके आता है, सब कुछ अवेलेबल है, फिर क्यों नहीं देखना? ठीक है ना? विल Sir, टेक just अप द डेडिकेटेड वेबिनार्स फॉर दिस। खुद ब खुद sure, मत करो, रुक जाओ, जो कर sure. रहे हैं उनको करने दो। उन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत एफर्ट्स किया, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन और जजमेंट पे आते हैं। लेकिन आज भी कह रहा हूँ, उनका ऑब्जर्वेशन उनका ऑब्जर्वेशन है, उनका जजमेंट Okay. उनका जजमेंट। हम ट्रेड सेटअप क्रिएट करेंगे, हिस्टोरिकली हम स्टडी करेंगे, एंड देन ओनली विल अप्लाई। 10% Noted. कम बोल रहा हूँ, 10% कम बोल रहा हूँ। और ऐसा I उसमें know. से जितने भी मैं ट्रेड देने वाला हूँ, उसमें से एक भी ऐसा ट्रेड नहीं होगा कि जो मैंने कभी आपके साथ शेयर नहीं किया हो, कभी नहीं समझाया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ सिखाया हुआ है, सब कुछ समझाया हुआ है। ओनली लिमिटेशन वॉज कि फ्रेम ट्रेड सेटअप नहीं है हमारे Frame पास, setup money. फ्रेम नहीं है जैसे एक्टिव शिक्षा के है। बाकी कुछ भी नया नहीं है, हिमांशु सर के पास कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ कहीं ना कहीं किसी ने कभी ना कभी सबको दिया हुआ ही है। अच्छा बोलो नेक्स्ट। Sir, next I think I have sent you on WhatsApp. I think sir, હવે આમાં છે ને post opening માં there are so many stocks in the future are there. So what is the ideal strategy? So one thing is I thought that there are certain stocks that I want to follow only. કે just 10 બાર જે stock છે index ના, in that only I am planning to trade. કે જે પણ આપણા post opening trade setup માં હશે અને reversal buy sell અને snakes and ladders ના through. So what should be the ideal strategy according to you? એટલે एक्टिव कर your रहे हो, sector.
एक्टिव शिक्षा कर रहे हो, टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, तो हमको प्री ओपनिंग और पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जो स्क्रिप्ट आती है करना होगा। ओके। मैं पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पैसिव ट्रेडिंग कर रहा हूँ, एपीसी नोएजी, और या तो हम पोस्ट क्लोजिंग टोन के जो ट्रेड सेटअप हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें एक डिसिप्लिन अगर हम और जोड़ दें कि मेरी 25 स्क्रिप्ट होगी और ये 25 स्क्रिप्ट में जब भी ये सिनेरियो बनेगा पूरा साल करूंगा, सब करूंगा, तो वहां पर हमको स्क्रिप्ट फिक्स करनी चाहिए, क्योंकि ओके। वहां पे ट्रैकिंग की जरूरत है। यहाँ पे ट्रैकिंग की जरूरत नहीं है, हर हफ्ते स्क्रिप्ट बदल जाती है, तो बस उसकी मंडे टू फ्राइडे की है। एक्टिव शिक्षा में हम ओके। हमारा पोर्टफोलियो बनाएंगे तो ऑलरेडी कितना कुछ फिल्टर करके कम स्क्रिप्ट आ रही है, और हम हमारा पोर्टफोलियो बना लेंगे तो वो स्क्रिप्ट आएगी नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। पोजिशनल सेटअप के लिए, ओके। पैसिव सेटअप के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, तो उसके लिए हम 25-50 स्क्रिप्ट जो है, जो हम संभाल सके फ्रॉम एवरी डिफरेंट सेक्टर, फ्रॉम एवरी डिफरेंट इंडस्ट्री, हर सेक्टर में से एक आध स्क्रिप्ट, टीसीएस लिया तो फिर विप्रो इन्फोसिस नहीं लेना, जो लेना है वो लेना बस, फिर वो नहीं करना, और उस 25 स्क्रिप्ट को फॉलो करते रहो और साल भर पकड़ के रखो, साल भर में जितने ट्रेड आते हैं सब ट्रेड लो, एक भी ट्रेड मिस नहीं ओके। करना। मतलब वॉट दैट एवर द इज ओके। ओके। दैट इज द वे ऑफ ट्रेडिंग पोजिशनल एंड पैसिव, नो। जैसे आप फंड मैनेजर के यहाँ बैठते हो तो हर सेक्टर के लिए एक 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 एक, एक, एक टीम अलग होती है, डिफरेंट टीम फॉर एवरी सेक्टर, यस और नो। फार्मा वाला केमिकल नहीं देखता, केमिकल वाला लेजर नहीं देखता, लेजर वाला टेक नहीं देखता, मुझे नहीं मालूम है, आई हैव नॉट मूड विद देम, बट ऐसा ही होता होगा। यस यस, यू आर राइट सर। ठीक है ना, जैसे वो सेक्टर की मास्टरी करते हैं, उनको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की मास्टरी करनी है। ओके, नोटेड, डन। थैंक यू। एनी क्वेरी फ्रॉम एनीवन? देखो यार, मैं ना, हम लोग एक सब शिक्षा परिवार के लोग हैं, बराबर है ना? यस और नो? बोलो हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तो मुझे अगर कोई गलती कर रहा है, कुछ कहना है, तो मुझे कहने का पूरा हक है। नए लोगों को मैं कुछ नहीं कहता हूँ, क्योंकि उनको कहना चालू किया तो क्वेरी नहीं पूछेंगे, इसलिए उनको पुचकार के प्यार से समझाता हूँ। बट सीनियर्स अगर कहीं गलती करते हैं इस तरह की, तो आई होप कि भाई मुझे पूरा हक है कहने के लिए। डांटता नहीं हूँ, बट अपसेट तो हो ही सकता हूँ, राइट? ये रॉय यार, मैं पहले ही पूछ रहा हूँ कि भाई तुम बिगिनर्स हो, फ्रेशर्स हो, पहले ही पूछ लो। मैं 5 मिनट तक मैं होल्ड कर रहा हूँ, उसके बाद में जब सेशन सीनियर्स के पास चला जाता है, देन यू आर कमिंग इन बिटवीन। ऐसा मत करो ना प्लीज। बोलो रॉय, पूछो। सॉरी सर, मैं थोड़ा आज लेट से आया था, इसीलिए मैंने सुना नहीं था। आई एम वेरी सॉरी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर थोड़ा अंबुजा सीमेंट्स निकालेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। लिख सकते हो, कुछ मैसेजेस है, क्या लिखा है? Sir, can we do JSPL in complete around by when trades turn around and complete around this time frame? Must be daily. Thick thing. EOD is yet to be updated from the source. We do not have any information about when it will come. Once we receive, we'll streamline it in our software. Data upload started, no? अच्छा, वो पुराना मैसेज होगा उनका।
मैं कल ही किसी को बोल रहा था सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉ कभी कभार लास्ट 5 मिनट्स का अपडेट नहीं होता हो तो आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉ अच्छे से सीख लो। कल टेक्निकली लाइव डेटा सोर्स ही नहीं आया एक दिन के लिए तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे? पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉ डिपेंड नहीं होना है, इट इज फॉर रेफरेंस। एक बार सीख लिया देन इट इज फॉर रेफरेंस, और कल ही बोला और आज ही हो गया। डेटा इज स्टार्टेड और नॉट? अच्छा 24 डीओडी डेटा तो आ गई, लेकिन ओवरली डेटा आएंगे उसके बाद ही सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग फिर से अपडेट होगा, उसके बाद ही ट्रेड सेटअप पेजेस अपडेट होंगे, उसके बाद ही स्नेक्स एंड लेडर्स अपडेट होगा। आई डोंट नो व्हेन इट विल बी डन, बट कितने भी बजे आए they will do it and I will also watch. So today's record sheet summary high low close data are updated, but when can we see snakes and ladders? I understand today's snag has created problem for updation. I myself not aware. क्या लिखूं उनको जवाब में? Before tomorrow morning को once data is available. हाँ यस रॉय बोलो। Sir, Ambuja Cement, sir. Weekly time frame. सर अंबुजा सीमेंट्स ने आरएमएसएल लो किया था विदाउट गैप, नो गैप सर। तो सर आज मिनिमम कौन सी डेट में जाऊं, कहाँ जाऊं, कौन सा वीक? सर दिस वीक 27 to 21 सर आरएमएसएल लो खुला था सर। तो इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो हो रहा है 271.90 टू 274.95 सर, जो रिट्रेसमेंट हो रहा है, रेजिस्टेंस जो हो रहा है। तो सर आज के टाइम फ्रेम में, आज अगर डेली का अगर आप देखेंगे तो आज ये रिट्रेस किया था सर थोड़ा डेली जा सकते हैं सर इसका? आज का फुल डे का हाई 270.30 बता रहा है। हाँ सर वो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट के लिए FC 14.6 TVLS जो है 271.90 उसके ऊपर गया तो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट होगा ना? हाँ सर, लेकिन सर आज का जो ये था रिकॉर्ड शीट था उसमें 270 का 60 का रेजिस्टेंस था सर। डेली थोड़ा टाइम आज का डेली टाइम फ्रेम में, आज थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में चाहिए सर। अच्छा क्वेरी क्या है? मैं डेली में जाता हूँ, क्वेरी क्या है? सर वो जो रेजिस्टेंस यहाँ से जो किया है तो वो तो एफआर होगा ना सर? आज तो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट नहीं दिया तो एफआर का सेटअप हो रहा है, एफआर का ट्रेडिंग का सेटअप हो रहा है, यही मैं पूछना चाहता हूँ सर। सेलिंग के लिए सर। ये है ना एफआर पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप में अंबुजा सीमेंट सेलिंग में आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा था। नहीं हो सकता है यार, ये मल्टीपल लेडर से चल रहा है, कैसे सेलिंग के सेटअप में होगा पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में? अगर है तो एरर है। मैंने कहा भी है कि एक बार स्नेक्स एंड लेडर्स के ऊपर नजर डाल दिया है करो, क्योंकि वो अभी अभी इंक्लूड किया है। बट आई एम चेकिंग रेगुलरली, आई हैव आस्क्ड 2-3 also टू चेक रेगुलरली। सिर्फ एक स्क्रिप्ट में एरर आ रही है, अंबुजा सीमेंट सेलिंग में नहीं होना चाहिए।
कहाँ है मुझे सीमेंट सेलिंग में? कहाँ है मुझे सीमेंट सेलिंग में? हो ही नहीं सकता है अकॉर्डिंग टू स्नेक। आप है ना रॉय, ये हाँ आरएमएसएल सर, हाई लोअर के आईसीआरसी आईसीएफसी करना चालू कर दो। ओके सर। मैंने पहले भी कहा है कि आईसीएफसी ओपन हो तो बाइंग करना है, आईसीआरसी ओपन हो तो सेल करना है। री एंट्री इनटू आरसी और री बिगिन टू बाइंग पहले इंटर चैनल जोन कर लो। आरएमएसएल हायर आरएमएसएल लोअर के ऊपर 15 दिन के लिए ब्रेक ले लो, क्योंकि क्या प्यार ओके हो गया आपको आरएमएसएल हायर लोअर से मालूम नहीं। आप पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जाए बगैर सीधा आरएमएसएल हायर आरएमएसएल लोअर रिट्रेस हुआ वो सब देख रहे हो। देयर इज, प्लीज समझ लो कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉक जो है या सपोर्ट रेजिस्टेंस के जितने भी सिनेरियोज है या हाउ ओपन्स है, एक्टिव सपोर्ट है, फ्रेश सपोर्ट है, मिनिमम रिट्रेसमेंट है, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट है, वो सबसे ज्यादा ऊपर है बाइंग का जजमेंट और सेलिंग का जजमेंट। और बाइंग के जजमेंट के लिए समझ लो कि हम कोई एक स्क्रिप्ट एक सेटअप लेते हैं से आईसीएफसी 5 स्क्रिप्ट, तो ये देखो कि ये 5 स्क्रिप्ट बाइंग में है। तो उसके लिए हमने, रॉय आपको बहुत आगे बढ़ना हो, आपने मुझे कहा था कि आपको पोर्टफोलियो मैनेजर कंसल्टेंट बनना है, एडवाइजर बनना है, तो बाइंग का जजमेंट डिराइव करने के पीछे का सोर्स क्या है, ये पूरा रीजन टू बाय रीजन टू सेल ये लिखा हुआ है कि हायर टाइम फ्रेम में से क्या क्या एक्सक्लूड किया, करंट टाइम फ्रेम में क्या इंक्लूड एक्सक्लूड किया, लोअर टाइम फ्रेम में से पूरा बाइंग का जजमेंट कैसे लिया ये देखो। फिर लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में इस सब का मतलब क्या होता है, ये इतने सिनेरियो इंक्लूड एक्सक्लूड किए हैं, लास्ट सिनेरियो जो है इंक्लूड किया है, ये देखो। ओके भाई ये सर। सब कुछ अवेलेबल नहीं था, ये सब कुछ लोग मैन्युअली करते थे। इतना सारा अलग चेकलिस्ट बनाने के बाद में पता चला कि सीनियर पार्टिसिपेंट ये सब मैनेज कैसे करते होंगे, किस यस किस सर। क्लियरली जिस 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट जो है, 8 9 पॉइंट जो है ये मैनुअल चेकलिस्ट करते थे वो। यहाँ तक कि एटीआर एक्सपेंडेड है कि नहीं वो भी देखते थे, हायर गैप है कि लोअर गैप है कि नो गैप है वो भी देखते थे। तो इतना रेडीमेड करके दिया हुआ है, तो प्लीज फॉलो दिस ट्रेड सेटअप नो। यहाँ पे ये जो 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दी है माय डियर फ्रेंड, यस सर। जो एफआरआर है, एफआर है, बाइंग के सेटअप को पहले लेके आओ आप। आपकी जब भी कोई क्वेरी है ना रॉय, विदाउट द बेस बाइंग सेटअप सेलिंग सेटअप होता ही नहीं, आप सीधा आरएमएसएल हायर आरएमएसएल लोअर ही पूछते हो। ऐसा क्यों है? अब ये कोई पोस्ट मार्केट फोन करो यार। श्योर सर। लास्ट वीकेंड भी बात की है, सैटरडे श्योर संडे सर। को, वापस कल हम बात करते हैं। ठीक है सर। जम्मू सीमेंट में आरएमएसएल लोअर खुल के रिट्रेस होके लोअर टाइम फ्रेम में अगर रेजिस्टेंस भी मिल गया हो और एफआरआर हो भी गया हो, मैं नहीं बेच सकता हूँ, सर। क्योंकि वो बाइंग के जजमेंट में है। अकॉर्डिंग टू स्नेक्स एंड लेडर्स वीकली में लेडर्स से चल रहा है। यस सर। बाइंग के सेटअप में सिर्फ लेडर नहीं है, मैंने अभी आपको खोल के दिखाया कि कितना कुछ है। हाई टाइम फ्रेम टोन, करंट टाइम फ्रेम टोन, लोअर टाइम फ्रेम टोन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, हायर टाइम फ्रेम का आरएमएसएल, हायर टाइम फ्रेम में आरएमएसएल हायर खुला हो और रिट्रेस नहीं किया हो तो भी वो भी स्क्रिप्ट एक्सक्लूड हो जाती है। हायर टाइम फ्रेम में आईसीआरसी ओपन हुआ हो और रिट्रेस नहीं हुआ हो तो वो भी एक्सक्लूड हो जाती है। हायर टाइम फ्रेम में हायर गैप है तो वो भी एक्सक्लूड हो जाती है। बाइंग सेलिंग जजमेंट को पकड़ के रखो, बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है। चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ आज, श्योर क्योंकि मैंने सर। आपको बहुत समझा दिया, मैं नहीं समझा पाया, तो एक नहीं 5 नहीं मिनट। समझाया सर। नहीं समझाया, क्योंकि मैंने बहुत बार अटेम्प्ट कर लिया, वेबिनार में भी कर लिया और पर्सनल भी फोन पे भी कर लिया। इसके लिए लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद वन स्टोरी जो मुझे अभी दिमाग में आ रही है।
गिव मी 1 मिनट, क्योंकि ये सब कभी कहना मैंने बहुत टाइम से बंद कर दिया, सो इट हैज टू क्लिक मी। रामायण के मेन कैरेक्टर कौन है? राम, और रावण, वेरी गुड। और महाभारत के? कृष्णा, अर्जुन, दुर्योधन। वेरी गुड। कुछ लोगों की क्वेरी है, मैं लेता हूँ, बट आई नीड टू फाइन ट्यून दिस रॉय, नहीं तो खो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, राम रावण कृष्ण भगवान की बात, राम भगवान की बात बाद में करते हैं 2 मिनट बाद। प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, नीति और नियम, ये दो में से कोई अच्छा। अगर एक चूज करना हो आपको लाइफ में, कभी ऐसे मोड़ पे आ जाते हो कि नीति या नियम, प्रिंसिपल्स और रूल्स, ये दो में से एक कोई फॉलो करना हो तो आप क्या करोगे? Sir, I will choose rules. ठीक है, अच्छी बात है। देखो, कोई भी इंसान को पहचानना हो ना, कोई भी इंसान अपने आसपास जो कोई भी है, whoever he may be, चाहे वो नया है या सालों से रिश्ता बना के रखा है, ये चार में से एक में ही वो आता है। या तो वो राम है, या वो रावण है, या वो कृष्णा है, या वो दुर्योधन है। और किसी भी पर्सन को हम ये चार, कुछ बात कह रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर कोशिश करूंगा कंप्लीट करने की, एंड वी कैन स्कैन दैट पर्टिकुलर पर्सन आउट ऑफ दिस 4 वे। Yes, sir. प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। भगवान श्री राम, he was man of principle, नीति एंड रूल्स, नियम, वो दोनों उन्होंने फॉलो किए लाइफ टाइम तक। इसीलिए ऐसा कहा गया, रघुकुल नीति सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। यस और नो? Yes, sir. प्रिंसिपल्स मतलब ट्रेडिंग जजमेंट, बाइंग का जजमेंट है या सेलिंग का जजमेंट है व्हेन इट कम्स टू आवर ट्रेडिंग बिहेवियर। एंड रूल्स मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो श्री राम भगवान ने ट्रेडिंग का जजमेंट एज वेल एज सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों फॉलो किया। Yes, रावण, sir. उनके जैसा महाज्ञानी पंडित आज तक नहीं हुआ। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. उनके जैसा धर्मिष्ठ शिव भक्त आज तक कोई नहीं हुआ। Yes, sir. उनके जैसा धनवान कुबेर उनका भाई, Yes, sir. फिनांशियली साउंड, उनके जैसा आज तक कोई नहीं हुआ। यस और नो? Yes, sir. मतलब धनवान होने के बावजूद, धार्मिक होने के बावजूद और ज्ञानी होने के बावजूद उनका सर्वनाश हुआ। क्यों? Yes, sir. क्यों? Sir, ego. नो रूल्स, नो प्रिंसिपल्स, नो उन्होंने Yes, sir. बाइंग का जजमेंट फॉलो किया, नो सेलिंग का जजमेंट फॉलो किया, नो सपोर्ट फॉलो किया, नो रेजिस्टेंस फॉलो किया। Okay, sir. पूरी लाइफ उनके कोई न नीति थी न नियम से बंधे हुए थे। श्री राम नीति और नियम से बंधे हुए थे, शायद इसीलिए वो भगवान कहलाए। Okay, sir. Got your point. और रावण सब कुछ उनके पास होने के बावजूद भी धनवान, धार्मिक एज वेल एज पंडित, ज्ञानी, ज्ञानी, फिर भी नियम नहीं उनका फॉलो किया, रूल्स एंड
क्योंकि नो प्रिंसिपल्स नो रूल्स। ऐसे इस बाजार में बहुत लोग हैं जो न उनके पास बाइंग का जजमेंट है, न सेलिंग का जजमेंट है, न सपोर्ट है, न रेजिस्टेंस है, और किए जा रहे हैं। अब महाभारत से सीखते हैं। दुर्योधन, नीति साफ नहीं थी उनकी, नीति बिल्कुल साफ नहीं थी, बट नियम का बहुत पक्का था दुर्योधन। उनके जैसा रूल्स आज तक किसी ने फॉलो नहीं किया। बट बाइंग का जजमेंट नहीं, सेलिंग का जजमेंट नहीं, सपोर्ट मिला बाई कर लिया, रेजिस्टेंस मिला सेल कर लिया। कृष्ण भगवान ने उनको समझाया नीति से। एक 5 गांव 5 पांडवों को दे दे ताकि वो राजा का स्टेटस जो है फॉलो कर सके, राजा के स्टेटस के हिसाब से वो रह सके। आखिर उन्हीं का तेरे पास है, पांडवों का ही जो कुछ भी है वो तेरे पास है। नियम से देना नहीं बनता है, नियम से देना नहीं बनता है, नीति से बनता है। तेरा भाई है, पांचों तेरे भाई है। और दुर्योधन ने कहा 5 गांव जमीन तो क्या, 5 सुई जितना भी है ना नहीं दूं मैं उनको जगह। क्या हुआ उसका? खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो किया, बाइंग सेलिंग का जजमेंट फॉलो नहीं किया, तो क्या हुआ दुर्योधन का हाल? विनाश। समझ गया सर। एंड कृष्ण भगवान उन्होंने जब से जन्म लिया ना तब से सब नियम तोड़े। जन्म लेते ही माँ बाप की हेराफेरी, पुतना को छल से मारा, कंस को छल से मारा, महाभारत में अश्वत्थामा को छल से मारा। लेकिन कृष्ण भगवान खुद के लिए कभी नहीं जिए। कृष्ण भगवान सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए जिए, दूसरों के कल्याण के लिए जिए। बाइंग का जजमेंट, सेलिंग का जजमेंट उन्होंने पक्का पकड़ के रखा। सपोर्ट रेजिस्टेंस से उन्होंने बहुत छेड़खानी की, रूल्स के साथ बहुत छेड़खानी की, लेकिन नीति एकदम साफ रखी कृष्ण भगवान ने। कृष्णा वे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं रॉय। ओके सर। कभी कभार हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे, और उसका नाम भी हमने दिया है कृष्णा वे। कभी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जावे, बाइंग का जजमेंट होने के बावजूद कभी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जावे तो मुझे बताना, तो मैं आपको बताऊंगा कि उस स्टॉप लॉस के साथ छेड़छाड़ करके कॉस्ट टू कॉस्ट कैसे निकल सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट। बट प्लीज मेहरबानी करके बाई सेलिंग के जजमेंट के साथ है ना छेड़छाड़ मत करो, प्रिंसिपल के साथ है ना छेड़छाड़ मत करो, नीति के है ना पक्के रहो। ओके नीति और सर। नियम दोनों हमको फॉलो करना होगा, लाइफ में भी और बाजार में भी। और कभी अगर नीति और नियम में से किसी एक को अगर हमको पुश किया जाए कि 2 में से एक ही तुझे करना होगा, तो तोड़ दो सब नियम, तोड़ दो सब रूल्स, तोड़ दो सब रेगुलेशंस, बट नीति को पकड़ के रखो। यस सर। और हमारे आसपास है ना 4 ही कैरेक्टर है, कोई भी हमारे आसपास ये 4 ही है, या तो कृष्णा है, या वो राम है, या रावण है, या उसमें दुर्योधन बसता है। ये 4 में से एक ही है, 5वां कोई नहीं है, इंक्लूडिंग मी एंड यू। Am I able to explain you, Roy? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर, गॉट योर पॉइंट। मैं नहीं समझा सकता हूँ तो मैं नहीं समझा सकता हूँ, फिर तो नहीं बाजार नहीं ही नहीं समझाए। समझ, नहीं सर समझ गया। What is more important? सर प्रिंसिपल्स। हम कृष्णा में नहीं जी सकते यार, हम भगवान नहीं है। हमको दोनों फॉलो करना होगा, बाइंग का जजमेंट एज वेल एज सपोर्ट। तो राम बन के जीना पड़ेगा सर। ऑब्वियसली। यस सर।
और कभी कभार सपोर्ट ट्रिगर हो जावे, स्टॉप लॉस हो जावे, तो उसको कॉस्ट टू कॉस्ट कैसे निकलना ये भी हम सीख सकते हैं, नॉट ए बिग डील। तब हम कृष्णा वे करेंगे, बट कब कृष्णा वे करना, उसके लिए कम से कम राम तो बने। श्योर सर। कम धार्मिक रहेंगे ना तो चलेगा, कम धनवान रहेगा ना तो चलेगा, कम ज्ञानी रहेगा ना, कम नॉलेज रहेगा ना चलेगा। 10 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हिमांशु शाह के पास होगी या 50 होगी, नहीं आती है चलेगा। खाली एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आती है ना रॉय, तो भी बस है, नहीं चाहिए बहुत ज्यादा पंडित है, बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा ज्ञान, एक तो बराबर ढंग से फॉलो करो, ठीक है ना। श्योर सर, श्योर सर। ज्यादा नहीं समझा सकता, ठीक है। बाइंग हाँ जजमेंट, सर, सर। पहले बाइंग जजमेंट, पहले नीति फिर नियम, ओके प्रिंसिपल्स एंड सर, रूल। श्योर रॉय सर। इतना सुनना पड़ रहा है करके वापस कल क्वेरी पूछने नहीं आऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं सर, मैं वो ये नहीं है मेरा। मैं सर जब तक अटकना नहीं कहीं भी। नहीं नहीं सर, जब तक मेरा क्वेरी खत्म नहीं होगा, जब साफ नहीं होगा, माइंड साफ नहीं होगा, तो तब सर क्वेरी पूछेंगे ही सर। Yes. I need only 30 seconds break, 1 minute break. आता हूँ, I'll have water and come. Yes, next. आज चेतन ने भी वही गलती की, न बाइंग जजमेंट देखा न सेलिंग जजमेंट देखा, तो सीधा यहाँ से यहाँ आएगा कह दिया। और चेतन का जो अपसेटनेस था वो पूरा रॉय के ऊपर निकला। रॉय नया है, वो गलती कर सकता है, हो सकता है और 5 बार उसको समझाना पड़े, बट वी सीनियर्स कैन नॉट डू दिस मिस्टेक। नए नए हैं, अगर वो गलती करते हैं तो गलती है। हम अगर सीनियर से और पुराने हैं और वो गलती हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की और इसकी करते हैं तो क्राइम है। बाइंग जजमेंट मैटर्स अ लॉट, नॉट सपोर्ट रेजिस्टेंस। एक बात कहूँ, सुनना नहीं, बाइंग के जजमेंट में गलती से भी बाइंग करोगे ना तो भी परफॉर्म करोगे। कभी सुना है किसी ने कहा हो अरे यार हाथ में रहता तो अच्छा था यार, भाव आ ही जाता, भाव आवे छे पाछा। वो इसके लिए आता है कि बाइंग के जजमेंट में करेक्शन सेल होता है ना, तो करेक्शन सेल कंप्लीट होकर ओरिजिनल अपट्रेंड वापस बिगिन हो जाता है, इसलिए उसके भाव आ जाते हैं। हाँ, सेलिंग के जजमेंट में अगर वो रेजिस्टेंस से चलने लग गया ना तो भाव उसका कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, मतलब जो टाइम फ्रेम में वो काम कर रहा हो, डिपेंड्स। सपोज वो कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, पोजिशनल ट्रेडर इन्वेस्टर है, और वो मल्टीपल स्नेक को रिसेंट लो पे एक तो ट्रेड करने पर भी उसने बाइंग कर लिया, कैसा आएगा उसका भाव? हाँ, मल्टीपल लेडर और रिसेंट हाई ट्रेड करके चल रहा हो और टूट गया हो, आ जाएगा उसका भाव वापस, नथिंग टू वरी। श्री कृष्ण। हाँ अंश बोलो। यस सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर टाइटन खोलोगे डेली टाइम फ्रेम? एक मिनट। हाँ, हाँ सर।
हाँ यस टाइटन में आ गया सर टाइटन में रिसेंट लो ट्रेड हुआ था 1396 1431 का कुछ रिसेंट लो था सर एक सेकंड 1415 हाँ सर हाँ एक मिनट मल्टीपल स्नेक्स एंड लेडर के पहले का लो 1415.25 1396 वाला दिन ट्रेड हुआ था सर फिर 1412.80 एक्सटेंडेड लो एंड 1412.80 का नेक्स्ट लेवल 1401 हाँ ट्रेड हो गया ये सर ओके ट्रेड हुआ था इसमें सर तो ट्रेड इनिशिएट किया था अब सर इसमें आई हैव बीन कीपिंग स्टॉप लॉस एज RC 100% only as we are discussing in webinars the first stop loss should be RC 100% only in positional trading तो आज सर PCI उसका ट्रेड हो गया अपर बैंड से तो वांटेड टू अंडरस्टैंड अभी होल्ड करना चाहिए कि हाँ बोलिए आप PCI अपर बैंड 1424 जो है ना वो आज अपर बैंड ट्रेड हो गया तो सर अभी समझाऊं मैं मतलब हाँ सर 22 फरवरी को ट्रेड अकर हुआ राइट हाँ सर और ट्रेड अकर होती है वहां पे स्क्वायर ऑफ करना है राइट हाँ सर करेक्ट सर नाउ prices are rising or declining डिक्लाइन when it will continue to decline further when PCDS 1390 trades on low side when it will stop declining and start rising PCR 1424.70 trades on higher side ट्रेड हाथ में नहीं है ट्रेड अब इनिशिएट करना बाकी है okay ट्रेड अकर हुआ स्क्वायर ऑफ हाँ कर सर लिया नाउ व्हेन वी करेक्ट सर इनिशिएट व्हेनेवर सर नेक्स्ट डे RMSL हायर खुला था ICRC ओपन हो या RMSL हायर ओपन हो या फिर हाँ एक सर स्टॉप एंड सेल दो या तो फ्रेश रेजिस्टेंस मिले ऐसा कुछ जो हम 4-5 इनिशिएशन करेक्ट स्ट्रेटेजी है करेक्ट उसमें से कुछ हुआ तो 23 हाँ फरवरी सर को RMSL हायर ओपन हुआ हाँ सर हमने बेच दिया हाँ सर बेच दिया स्टॉप लॉस मिनिमम RC 100% होना चाहिए हाँ सर वो नहीं हुआ सर बराबर है तो 1446.20 बराबर के स्टॉप लॉस पे हमने सेलिंग पोजीशन क्या कर इनिशिएट कर ली सर इनिशिएट कर ली फिर अब क्या करें अब सर होल्ड किया मैंने सो अगेन टुडे आल्सो आई केप्ट RC 100% as stop loss ठीक है होल्ड कर लिया ओके नाउ टेल मी एक्टिव शिक्षा भी इसमें लाओ हाँ एक्टिव शिक्षा जो हम शुरू में सीखते हैं आर्मी हाँ से सर हायर होकर रिट्रेस होकर क्लाइंबिंग बेट करता है हाँ सर एक्टिव शिक्षा में क्या करते हैं हम तो मतलब रिटेस सेलिंग होके कर बैठता है तो सॉरी सर क्या हम सेलिंग करते हैं सर सेलिंग तो सुबह ही हो गई थी ना कर लिया क्या हम सेलिंग होल्ड करते हैं स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड नो एक्टिव शिक्षा के हिसाब से सर एक्टिव शिक्षा के हिसाब से सेल ही नहीं किया था ना 100% के स्टॉप लॉस से हमने होल्ड कर लिया राइट हाँ सर 1446.20 यस सर गोइंग टू 24 फरवरी फिर जो नेक्स्ट बात एक और समझाने जा रहा हूँ वो कुछ मिनट बाद लेते हैं बिकॉज पहले ये ले लेते हैं नाउ टाइटन में मेरी सेलिंग पोजीशन है व्हाट शुड हाँ आई डू सर सॉरी सर व्हाट डिडंट गेट यू मेरी सेलिंग पोजीशन है व्हाट शुड आई डू हाँ नेक्स्ट सर टुडे मतलब दैट्स व्हाट आई वाज कंफ्यूज कि अपर बैंड स्टॉप लॉस रखना चाहिए और शुड इट बी RC 100 ओनली भले दोनों ट्रेड हो सर आज बट आई वांटेड टू कंफर्म दैट ठीक है मैं कंफर्म करता हूँ आप बताइए क्या करना चाहिए सर आई फील the stop loss should be upper band only because our PCR is trading on upper band and that is also with BDP बराबर है प्रेस सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी एंड क्लोजेस विद पीसीएस तो हमने अपर बैंड का स्टॉप लॉस रखना चाहिए एंड यही हाँ समझ सर लो कि राइजिंग चल में आईसीआरसी खुल के
या आरएमएसएल हायर खुल के हाँ अगर रेजिस्टेंस से चलने लग जाता, आईसीआरसी एक्टिव रेजिस्टेंस हम्म या आईसीआरसी ओपन होके फ्रेश सपोर्ट एंड देन स्टॉप एंड यूज टू सेल रेजिस्टेंस, हाँ या आरएमएसएल हायर एंड स्टॉप एंड यूज टू सेल रेजिस्टेंस, मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस राइजिंग सेल में मिलेंगे। दो ही रेजिस्टेंस, या करेक्ट तो एक्टिव या तो स्टॉप फ्रेश एंड यूज टू रेजिस्टेंस। तो हम क्या स्टॉप हाँ लॉस रखते हैं? तो सर तो आरसी 100 रखते सर। वेरी गुड, बस इतना ही पूछना था मुझे। तो ये एकदम क्लियर है कि अगर एक्टिव रेजिस्टेंस या फ्रेश रेजिस्टेंस से चल रहा है हाँ तो आरसी 100% रखते हैं। हाँ ये सर समझ में आ गई? हाँ सर ना दूसरी बात, एक्टिव रेजिस्टेंस या फ्रेश रेजिस्टेंस से नहीं भी चल रहा हो हम्म तो भी 100% कब रखना, ये सीखे। हाँ सर अकरेंस पीरियड होने के बाद 22 फरवरी को ट्रेड अकर हुआ, क्या उसके बाद हाँ वो सर एक बार रेजिस्टेंस से चला, फ्रेश रेजिस्टेंस से? सर वो कल एक्चुअली ठीक है सर डेटा रहा था बट ड्यूरिंग द डे इट वाज शोइंग स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो बीडीपी। वो सर डी एंड पे सर वो चेंज हो गया ओवरऑल बट ठीक है बात सर वो करते मतलब ओवरऑल बात करते कि क्या रेजिस्टेंस से चला। नहीं चला सर नहीं चला। तो एक बार भी रेजिस्टेंस से चल गया होता है ना अकरेंस पीरियड के बाद, जिस हाँ दिन ट्रेड अकर हुआ हम्म उसके बाद तो एक बार भी फ्रेश रेजिस्टेंस से चल गया होता, या तो स्टॉप एंड यूज हम्म टू सेल का रेजिस्टेंस या फ्रेश रेजिस्टेंस। मतलब हम्म प्राइसेस स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्टेड फॉलिंग, वो रिवर्स हो गया, पुल बैक दे दिया, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ हो गया। उसके हाँ बाद में है हमको एक और रेजिस्टेंस हर टाइम फ्रेम में एवरीडे मिलने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट कीप आरसी 100% स्टॉप लॉस एंड लीव इट। ओके समझ में आया? हाँ सर एक बार भी बट ट्रेड अकर होने के बाद इन कमिंग डेज एक बार भी सिर्फ की बार फ्रेश रेजिस्टेंस से चल गया हो, उसके बाद हाँ में हमारा हमेशा फर्स्ट स्टॉप लॉस आरसी 100% होगा। ओके और आरएमएसएल हायर खुल के अगर हमारा ओपनिंग क्लाइंबिंग बेस अबव 100%, तो फिर वो जो भी तो ओपनिंग क्लाइंबिंग होगा करेक्ट दैट विल करेक्ट स्टॉप लॉस। ओके लोअर बैंड ट्रेड कर लिया तो माय स्टॉप लॉस विल बी अपर बैंड। देन इट विल बी अपर बैंड सर। एफसी 100% ट्रेड कर लिया तो माय स्टॉप लॉस विल बी एफसी 11.8% एंड सो यस ऑन। सर एफसी 126 ट्रेड कर लिया तो पोजिशन ट्रेडिंग करने हाँ से स्टॉप लॉस जो है मेरा एफसी 100% हो जाएगा। ये सुन लो, यस सर बस ये दो ही बात समझानी थी। तीसरी बात जो है, एक आप अच्छे से समझ गए कि जब तक रेजिस्टेंस नहीं मिला है तो मुझे सपोर्ट पे ही निकल जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर एक बार सिर्फ एक बार रेजिस्टेंस चल गया है तो मुझे बार बार रोज रेजिस्टेंस देखने की जरूरत नहीं है। ओके डायरेक्ट आई कैन कंटिन्यू टू होल्ड विद द स्टॉप लॉस एज वी डिस्कस्ड नाउ। सिर्फ एक बार रेजिस्टेंस मिलने की जरूरत है ना। तीसरी बात, अगर ये समझ सके तो अच्छी बात है कि अगर थोड़ा नो हाउ के साथ करें 23 फरवरी को हाँ आरसी 100% के स्टॉप लॉस से मैंने बेच दिया हाँ और ये सपोर्ट से बंद हो रहा है, हाँ सर सपोर्ट से बंद हो रहा अकरेंस पीरियड के बाद एक बार भी रेजिस्टेंस नहीं मिला है, नहीं मिला करेक्ट सर। तो कैन आई कंटिन्यू टू होल्ड? सर बिकॉज सर आई हेल्ड बिकॉज आई ट्राइड टू ट्रेड द बीडीबी बट बीडीबी ट्रेड नहीं कर पाया सर। कोई बात नहीं, एक ही सेंटेंस में पूरी बात जो हमने डिस्कस किया, एक ही सेंटेंस में अगर हमको समझना हो तो वी कैन कंटिन्यू टू होल्ड विद द स्टॉप लॉस ऑफ आरसी 100% ऑल द डेज if at least it is traded with resistance at least once. सर फ्रेश सेशंस ना क्या एक्टिव ही चलेगा? फ्रेश रेजिस्टेंस, नो एक्टिव रेजिस्टेंस यार। ओके पोजीशन सिस्टम में आते हो ना तो ये हाँ आईसीआरसी एक्टिव सब, आईसीएफसी एक्टिव सपोर्ट, री एंट्री, री बिगिन सब भूल जाओ। ठीक है सर ओके ठीक है सर। सर सुन और ऐसे एक और लास्ट बात, जो आपने बहुत बार आपने खुद ने हाईलाइट की है, देखो पीसीएस पीसीआर करना हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करना हो तो ये छोटी छोटी हाँ बातें
नहीं होगी। और आपने बहुत बार हाईलाइट टर्न अराउंड कंप्लीट अराउंड हुआ हाँ सर। या नहीं हुआ? हुआ सर। टर्न कंप्लीट अराउंड हुआ मतलब जर्नी कंप्लीटेड। ओके, यस यस सर। अब 1407 लोअर से ट्रेड करके टर्न अराउंड होगा, कंप्लीट टर्न अराउंड होगा तो ही तो सेलिंग आएगी ना। आप देखो हाँ तो सर। सही, एक मैंने आपकी सब बात का मैंने जवाब दे दिया, बराबर है, सब कुछ आपने समझा। हाँ। लेकिन whether it is trading with complete around buy और complete around sell, करेक्ट सर। 10 फरवरी से ये लगातार कंप्लीट अराउंड बाई से ही चल रहा है, कंप्लीट हाँ अराउंड सेल हुआ ही नहीं है। सर, से कंप्लीट टर्न ऑन बाय से चल रहा है, हाउ आर वी सेइंग दिस? वो मुझे वो से थोड़ा समझाएंगे एक बार डिटेल में? लास्ट रिकॉर्ड पर्टिकुलर स्क्रिप्ट कंप्लीट अराउंड बाई से चल रही है कि सेल से चल रही है, यहाँ पे लिखा हुआ आता है। ओके, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसके लिए कि आपको पुराने रिकॉर्ड शीट समरी में जाके ढूंढना नहीं पड़े, सर्च नहीं पड़े, करना पड़े कि कब हुआ, कैसे हुआ। ओके So it is mentioned here in last record for all the scripts, all the 3 time frames. ओके ओके, और कंप्लीट ठीक है अराउंड सर। मतलब मुझे बेचना हो तो बराबर जहाँ पे जर्नी 1407 तक की थी वहीं तक जर्नी आ गई। तो स्नेक्स एंड लेडर्स की साइकोलॉजी तो ये है ना कि जर्नी कंप्लीट कहाँ होगी और न्यू राउंड ऑफ बाइंग और न्यू राउंड ऑफ सेलिंग बिगिन कहाँ से होगा। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट सर। और ये बात आप खुद हाईलाइट करते रहते हो हर बार वेबिनार में। सर माय नेक्स्ट क्वेरी इज रिलेटेड दैट ओनली, तो सर वही नेक्स्ट क्वेरी पूछ लूं? पूछ लो। सर ऑर्डर फार्मा डेली टाइम फ्रेम। कभी कभी व्हाट्सएप मैसेज में भी सवेरे क्वेरी आती है, मैं भूल जाता हूँ। विल टेक यस 2-4 सर दिन और ऑर्डर हैं। फार्मा कंप्लीट हम्म टर्न अराउंड होके हम्म 19 का पीसीडीएस भी ट्रेड हो गया ऑन द लोअर साइड हम्म ऑन 22nd। तो हम्म सर इसमें अभी 5% के लिए होल्ड करना चाहिए ना? यस यस। कब टर्न अराउंड कंप्लीट अराउंड अकर हुआ? 22nd सर, 19 को अकर हुआ सर। 19 को हुआ। प्राइसेस आर हाँ, राइजिंग और डिक्लाइनिंग? डिक्लाइनिंग। when it will continue to decline further? पीसीडीएस ट्रेड्स ऑन लो साइड। when it will stop declining and start rising? व्हेन पीसीआर ट्रेड्स ऑन हायर साइड। तो PCDS 880 हाफ ट्रेड कर ही लिया। कर लिया सर। और ICRC होके पुल बैक देके किया कि सीधा किया? सर पुल बैक दिया एक बार। अरे ICFC खुला बट ऑलमोस्ट 890 तक तो आया ना पीसीआर तक। ये हाँ सर। जजमेंटल है। 890 वहीं से पीसीआर से घुमा कह सकते हैं, पीसीआर को हाँ मिल के ही सर। घुमा। हम्म। एंड एक और बात, 5% ही देगा ये आपको समझ में आ रहा है? अब जो मैंने अभी अभी हम्म। आपको समझाया, कैन यू रिपीट दैट? अभी अभी सर नाउ सो अभी फ्रेश सजेशन दे दिया है उसने। सो नाउ वी हैव टू होल्ड विद आरसी 100% स्टॉप लॉस एवरी डे। वेरी गुड। ठीक है आज सर। से 100% सब ठीक है लोअर सर, बैंड गॉट ट्रेड दिस। कर ले, आज से 100% लोअर बैंड ट्रेड कर ले जिस दिन, तो अपर बैंड। सर तो तो अभी यहाँ पे एक चीज देखते खाली हैं मुझे पूछनी थी। 23 फरवरी को आरसी 100% क्या था? 902। हम्म। देन बीडीपी 915 सामने ही है। हाँ और ये थोड़ा डर रहेगा, नए नए रहेंगे ना तब तक डर रहेगा, लेकिन हिस्टोरिकली अगर हमने प्रैक्टिस किया हो तो ये डर नहीं रहेगा। और हमने हमारा केस हमारे पास हमने ट्रेड है या नहीं है, बट बाकी ट्रेड्स भी अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डर नहीं रहेगा। बट यहाँ पे ICICI खुला तो डर निकल गया, लेकिन लोअर बैंड ट्रेड नहीं किया, फ्रेश सजेशन नहीं मिला। 24 को RMS हायर ओपन हुआ। हाँ तो सर। कोइंसिडेंटली RC 61.8, RC 100% BDP दोनों सेम है। हाँ तो RMS हायर खुल के भी देखो सपोर्ट से नहीं चला,
और हाँ सर। ट्रेड इज ऑलरेडी, एक बार ट्रेड एक्शन में आके रेजिस्टेंस से चल चुका है, तो बस आरसी 100% के स्टॉप लॉस से होल्ड करो। जिस दिन लोअर बैंड ट्रेड करे किया और कल कर लेगा, ऐसा हाँ दिख रहा है मुझे, कर लिया हाँ तो भी 5% पक जाएगा। वैसे भी 880 से कौन से भाव में सीलिंग आई है देख लो। सर, और फ्राइडे 870.25। हाँ, तो वहां से 5%। और फ्राइडे को अगर अगर आपका टारगेट आता है हाँ, तो डोंट बुक द प्रॉफिट तो टिल डे एंड तक होल्ड 330। करना। यस सर, करेक्ट। और थोड़ा ठीक है नो सर। हो और ऐड करना हो तो भी भाव क्या चल हाँ रहा है, 800 के आसपास है। तो हाउ इट इज बिहेव व्हेन इट वाज 870। ये 22 फरवरी का मल्टीपल रिकॉर्ड है, तो 880 है। हाँ सर, 880 आल्सो ट्रेडेड। 889 भी है सर, 889 भी है सर। दोनों 835 के पास, रिसेंट हाई ट्रेड। 835 के आसपास, ये 801, यहीं से प्राइसेस फॉलिंग स्टार्टेड राइजिंग। तो बस 801 के यस सर। 801 आए, ये भी समझ के रखो। जब ट्रेड होल्ड किया है तो जब तक रेजिस्टेंस ट्रिगर नहीं करे तो 5% से ज्यादा भी मिलेगा। और 801 जिस दिन जिस प्लान में आ गया, आई एम नॉट सेइंग हाँ 801, इफ 801 इज अबव एफसी 100% जब भी आ गया, इन हाँ नॉर्मल ट्रेड आ गया, तो बस उस दिन हाँ 801 आ गया समझ के स्क्वायर ऑफ कर ले। जैसे कल सर, के कैन यू प्लान रिपीट में, अगेन? समझा नहीं सर। 801 एफसी 100% के ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। 801 का भाव, प्रोजेक्टेड टारगेट, प्रोजेक्टेड जर्नी, एफसी 100% के ऊपर है कि नीचे है? नीचे है। नीचे है ना, मतलब अभी आने की जगह है। समझ लो जिस दिन कोई ऐसा प्लान होगा कि 801 इज कमिंग इन फॉलिंग चैनल एंड इट इज अबव एफसी 100%, हम्म तो उस दिन डे, ये 1 डे बिफोर ही माइंड बना के जाना कि कल पोजीशन प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है सर। और यूजुअली वो आईसीएफसी खुलेगा तो हाथों हाथ फर्स्ट 50 मिनट्स में भी वी आर अलाउड टू बुक द प्रॉफिट, बुक कर लेना। ठीक है सर, गॉट इट। ठीक है सर। सर, मूविंग टू माय नेक्स्ट क्वेरी, सिमिलर लाइंस पे ही है सर। कैडिला एचसी। सर, इसमें मुझे खाली एक चीज सर क्वेरी थी सर। अभी से इसमें वापस कंप्लीट टर्नअराउंड कंप्लीट हो गया है। सो अपन बोलते हैं कि जर्नी खत्म हो गया, बट सर पूरा रिकॉर्ड शीट लाल दिख रहा है एंड रिसेंट लो भी ट्रेड हुआ है अभी। सो इफ वी गेट अ चांस टू सेल आईसीआईसी, शुड वी सेल विद द स्टॉप लॉस ऑफ अपर बैंड? सामने मुझे तो ये ड्रिफ्टिंग सेल भी 439.5 दिख रहा है। सर वो भी क्या ट्रेड ये हो गया सर। कर लिया? हाँ सर, नहीं नहीं सर, सही नहीं सर, वो नहीं हुआ है। आज हुआ रहेगा, वो नहीं हुआ सर। 430.5 नहीं हुआ। 22 को नहीं हुआ, नहीं 23 नहीं को? हुआ सर, 10 पैसे से नहीं हुआ। तो यहाँ पे ट्रेड कर लिया ना, सर वी टेक द 431.25, एक्सटेंडेड है ना। 425.15, ये हाँ क्यों नहीं हाँ हुआ सर, हो गया बताओ? करेक्ट सर। हाँ सर, हो गया। तो बोलो क्या पूछ रहे हो? सर आइडियली तो 5% देना चाहिए और, बट मुझे खाली कंप्लीट टर्नआउट है ना, इसलिए डर लग रहा है। पीसीआर को मिल लिया? पीसीआर को हाँ मिल लिया। कॉन्फ्रेंस हो गई उससे? हो गए सर। हो गई? हाँ सर, आशीर्वाद ले लिए? ले लिए सर। और 439 से ट्रिगर हुआ था फॉल 15 से 261.8, तो उसको भी आज मिल लिया? ले लिया सर, हाँ। बेच दो। आईसीआरसी खुल के भी एक्टिव रेजिस्टेंस दे दिया, आरसी दे 38 दिया पॉइंट सर, 1 नहीं कर पाया, नहीं बेच ट्रेड दो। कर पाया सर। ठीक है सर। सो सर द स्टॉप लॉस नाउ वुड बी 433.95, ट्रेडेड ऑन हायर साइड, करेक्ट? क्यों 437 35 क्यों नहीं? 439.50 क्यों नहीं?
आरसी करेक्ट करेक्ट 100% हाँ ओके मिनिमम आईसी 100%। ठीक है सर अंडरस्टूड। और अगर ये ट्रिगर भी हो जाए तो बाइंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, बाइंग सेलिंग का जजमेंट जो है वो इंटैक्ट ही रहेगा। फिर वापस जब हाँ रेजिस्टेंस सर मिले तो फिर बेचो। नीति और नियम में नीति को पकड़ के रखो, नियम टूटते रहेंगे। करेक्ट सर गॉट इट। अगर कभी पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, पैसिव ट्रेडिंग कर रहे हैं और लंबी जर्नी लेनी है और एक दो ट्रांजेक्शन छोटे छोटे लॉस हो भी जाते हैं, होने दो, वापस रेजिस्टेंस मिले फिर बेच दो। करेक्ट सर करेक्ट। सर क्योंकि लंबी जर्नी की बात होती है का ये सब स्टॉप लॉस तो है ना, ट्रेडिंग के स्टॉप लॉस है। आरसी 100% ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस है। लोअर बैंड ट्रेड किया तो अपर बैंड ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस है। 100% ट्रेड किया तो 11.8% ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस है। पीसीआर, रिसेंट पीसीआर ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस है। पोजिशनल ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग का मेन व्यू जो है, छोटा व्यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म व्यू, तो हम रिसेंट स्नेक का पीसीआर तो रखेंगे ना, 451.90 के नीचे है ड्रिफ्ट। अगर ये तब तक सेलिंग रेट देख रहे हो तो जब तक ये अभी 439.5 इज ट्रेडेड ड्रिफ्टिंग सेल का, तो ड्रिफ्टिंग हाँ 457.55 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया एज पर 261.8 एंड एज पर स्नेक्स एंड लेडर्स रिसेंट स्नेक का रेजिस्टेंस 451.90 तो रखे व्यू के लिए, व्यू के लिए करेक्ट। 5% के ट्रेडर्स जो है वो इतना लंबा स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, नहीं रखना चाहिए। बट मेरा स्टॉप लॉस अगर कभी ट्रिगर भी हो जाता है तो जब तक 451.90 457.55 के नीचे है उसको सेलिंग के रैडर में तो रखूं, फिर जब रेजिस्टेंस मिलेगा तो फिर बेच देंगे। और करेक्ट जब करेक्ट भी सर और एक और एटीट्यूड डेवलप करो, जब भी स्टॉप लॉस ट्रिगर होना हंस हाँ और सेलिंग का व्यू इंटैक्ट होना, हाँ तो बोलो पुल बैक हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और ये पुल बैक होके डिस्ट्रीब्यूशन होके अगर टूटता है ना तो अब नेक्स्ट ट्रेड हाँ 5% नहीं 10% लगा। यस सर करेक्ट सर 10% नहीं तो कम से कम जितना रुपए का पुल बैक आया उसका डबल तो लूंगा ही। जैसे अभी हमने रिसेंटली बॉक्स में बात की थी, पुल बैक आया था 600 रुपए, अच्छी बात है। हाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, अच्छा बात है। पुल बैक हुआ, अच्छा बात है। जितने रुपए का पुल बैक आया, जितने पॉइंट का पुल बैक आया उसका डबल मिनिमम टूटेगा। करेक्ट सर समझ रहे हो ना? हाँ सर ये सब हाँ पोजिशनल बताओ ट्रेडिंग की छोटी बातें हैं which cannot be framed, which cannot be written। एक्सपीरियंस से, इस तरह से केस स्टडी के साथ ही सीखते सीखते सीख जाएंगे। ये नो हाउ है। आई होप दिस नो हाउ इज नॉट डिफिकल्ट। नहीं सर नो हाउ में से यही चीज और एक चीज से पूछनी थी, लंबी जर्नी कैसे लेते हैं सर? टाटा केमिकल्स खोलोगे? बाकी लोगों को लूं या नहीं लूं, रुको एक मिनट। नहीं ठीक नहीं सर ठीक है मैं नेक्स्ट वापस विल टेक इट अप नेक्स्ट टाइम। हाँ, जो कभी कभार आते हैं उनको भी ले लो ना। हाँ अजय बोलो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर बायोकॉन वीकली ओपन करेंगे? फर्स्ट 10 मिनट्स तो मैं कहता ही रहता हूँ एनी फ्रेशर एनी फ्रेशर एनी फ्रेशर, आती ही नहीं है। हाँ बोलो अजय सर बोलो। सर बायोकॉन वीकली ओपन करेंगे? तो 26 दिसंबर को जाएंगे जरा ऊपर सर जरा। स्टॉप एंड इन्वेस्ट टू बाय सेल का कॉलम ओपन कर लेंगे सर, एक मिनट। यहाँ पर भी है ना? हाँ ठीक है। अभी सर ये ना रिवर्सल सेल हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जनवरी में हुआ है 23 तारीख को। अच्छा, नीचे ये आएंगे थोड़ा सा। रिवर्सल बाय सेल। हाँ सर बस इतनी छोटी क्वेरी है मेरी। नहीं कोई बात नहीं, छोटी या बड़ी हो क्वेरी तो क्वेरी। अच्छा वीकली में तो रिवर्सल बाय सेल रेडी नहीं किया है। हाँ सर मुझे ठीक पता है।
हाँ, तो कोई बात नहीं। ये जनवरी में 23 तारीख में सर ये रिवर्सल सेल 261 ट्रेड कर दिया है, तो इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। 23 तारीख को जनवरी में। Stop and used to buy support 425 is traded on lower side, no? तो रिवर्सल सेल हो गया ना। लेकिन 261 से हुआ है ना सर वो। 261.8 ट्रेड कर लिया ना। हाँ सर कर लिया। तो 261.8 का बिहेवियर क्या कहता है? 261.8 ट्रेड कर लिया मतलब तो कंफर्म वो मानना चाहिए। तो मेरा डाउट इसी में मानना था कि ये नहीं पैनिक सर सेलिंग है। अच्छा कंफर्म सेलिंग, ओके। कंफर्म सेलिंग नहीं बोल रहा हूँ, पैनिक सेलिंग बोल रहा हूँ। अच्छा पैनिक से नहीं बोल रहे हैं, ओके ओके, हाँ हाँ। तो अभी सर मेरा क्वेश्चन खाली ये है कि 261 पे जब ऐसे सेल या कोई भी अकरेंस ऐसा होता है तो हम उसको नहीं मानते हैं जनरली। अगर इसने 394 ट्रेड नहीं किया हुआ तो हम नहीं मानते, या 394 ट्रेड कर दिया है तो मानना पड़ेगा। 261.8 पे 3 सिनेरियो है। एक तो एफसी 261.8 तक आना हाँ तो कुछ नहीं होना। हाँ दूसरा सिनेरियो है एफसी 261.8 तक आना हाँ और एफसी 261.8 ट्रेड कर लेना। हाँ तीसरा सिनेरियो है एफसी 261.8 तक आना हम्म, और उसी पीरियड में स्टॉप एंड यूज टू बाय हो जाना। हाँ उसमें एफसी 261.8 तक आना हाँ तो वहां पे हम सेलिंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। हम्म, बाइंग का जजमेंट हो और एफसी 261.8 आके स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ तो इट्स ए डोंट मिस अपॉर्चुनिटी टू बाय। यस, और एफसी 261.8 लोअर से ट्रेड कर लिया, हम्म, चाहे बाइंग का जजमेंट हो या सेलिंग का जजमेंट हो। बाइंग का हम्म, जजमेंट कहीं पे है ना, हम्म, खत्म हो जाता है। राइट। फिर नेक्स्ट मतलब फिर चार पीसीआर ट्रेड करेगा तब देखेंगे, राइट। हाँ, तो यहाँ पे प्राइसेस आर राइजिंग और डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग सर। When it will continue to decline further? ECDS 355.35 trade on lower side, then When it will stop declining and start rising? when PCR trades on higher side 428.60। जब हम 261.8 की बात कर रहे हैं, पैनिक हाँ सेलिंग की बात कर रहे हैं और अभी हाँ इंडल्स ने की है उसमें हम बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम हाँ हाई डीपी और पीसीआर तीनों में जो हाईएस्ट है वो रखे। 459.35 या 467 और बीडीपी पकड़े सर उसको, हाँ राइट। ठीक है ठीक है सर। एंड 355 इज नॉट ट्रेडेड, नो। हाँ नहीं ट्रेड कर सकता, इतना इजी नहीं नहीं है। ट्रेड किया, नहीं किया पैनिक सर, हाँ। सेलिंग है, पैनिक सेलिंग है तो डिस्ट्रीब्यूशन तो करेगा ना। 428 राइट, जितना उसकी ताकत, जो भी हम्म, मेथड है उसकी ताकत 428 तक भी कर सकते हैं। बहुत सारे हम्म, सेलर रहे हम्म, तो 428 से ही वो घूम जाएगा, राइट, और कम सेलर रहे तो और उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 459 हम्म, तक भी बेच गई, 467 तक भी बेच गई। इससे हम्म, बात करना सीख जाओ। राइट राइट, बायोकॉन का ऑपरेटर है ये। हम्म, 428, 467, 459 और देखो राइट सर, 424 तक आपको हिल गया, तो यहाँ हम्म, पे एक और आ गया। कहाँ आ गया? इट इज नॉट एबल टू ट्रेड ऑन हायर साइड, नो। हाँ राइट, वहीं तक आया सर वो। हाँ, तो बस हो गया, ये ट्रेड कर लेगा अभी 355 हम्म, भी। ये तो हिस्ट्री है सर, ये बैक डेटेड टेस्टिंग में चेक करा था। ठीक है ना। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। कहाँ गया मानो? मानो बेसिक क्वेरी, कॉन्सेप्चुअल क्वेरी, बिगिनर्स क्वेरी फर्स्ट 30 मिनट्स में ले लिया करो यार। फिर वो ना सीनियर लोगों की ना रिक्वेस्ट आती है, कुछ लोग प्यार से भी कंप्लेंट करते हैं कि सर हमको यही कुछ, वो एक जन तो ऐसे बोला कि हमको फिर से सेकंड स्टैंडर्ड में क्यों बैठाते हो करके। नो सर, ये मतलब वैसे कोई फ्रेशर्स क्वेरी नहीं थी। मुझे बस एक छोटा सा डाउट था। आप ऐसे कोल इंडिया डेली खोलोगे? जो भी क्वेरी है ना फर्स्ट 30 मिनट्स में ले लिया करो आप लोगों की, ठीक है ना। और आपकी क्वेरी 30 मिनट की पूरा 2 घंटा भी चलेगी ना
So we can skip seniors, but not you. But एक बार आपको अटेंड करने, आप एक बार सीनियर्स के पास चले गए ना, उसके बाद आपके पास आना मतलब सीनियर्स आर नॉट एंजॉयिंग. Yes, I understand. So इसमें आज के डेट में इसमें आज के डेट में LCP to sell earlier was 142.40. But then it opened RMSL higher and then it shifted to rising channel, climbing by 261.8. बराबर है. So all I wanted to ask was ki if a script opens RMSL higher, so does the LCP2 buy shift at that day itself to the climbing by 261, and same for the RMSL lower to drifting 261? भाई अभी 146.75 है समझ लो. हाँ सर. जो भी भाई है ना हाँ प्री ओपनिंग में, अगर वो RMSL हायर खुल गया और उसका हाँ. ओपनिंग क्लाइमिंग प्राइस जो है वो LCP2 बाई के प्राइस से ग्रेटर रहा. ओपनिंग क्लाइमिंग बाई इज ग्रेटर देन द प्रीवियस LCP2 बाई, तो शिफ्ट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा. हाँ, थोड़ा ड्यूरिंग मार्केट ओ आवर्स ही लेडर की प्राइस चेंज हो जाएगी. ओके सर, बस यही डाउट था सर. ठीक है. थैंक यू. Anyone else? Yes, Jui, बोलो. Good evening, sir. So my query is regarding reversal buy sell Tata Chemical. एक मिनट. हाँ. क्या होगा, क्या दिखा रहा है? So it's not opening the column. Yeah, why it is not available? अभी तो किए हम. Just now you have. Oh, sorry. This is reversal by sell occurrence manipulator. This is to be. Yes, बोलो जी. Yes, sir. Yes, sir. So this reversal buy happened on the 2nd Feb. Okay. And sir, this 2nd Feb, so PCCB of 2nd Feb had traded on the 4th, but here on the takeoff thing, the date mentioned here is 9th. So I wanted to know why is it 9th? Shouldn't it be 4th? Or what is it like? कोशिश करता हूँ समझाने की. Sorry, sir. I will try to answer very difficult question. To answer. Wait a minute.
1 minute. Yes, sir, not a problem. What is the price here? Why it is not occurred with? 2nd February reversal buy has occurred, right? Yes, And sir. 4th ladder has come. So Yes, sir. running. Still we are not showing the takeoff on 4th. इसका जवाब So हमको I did not understand. I'm sorry. Can you repeat? reversal buy has occurred on 2nd Yes, sir. and 2nd PCCB is traded on 4th. Yes, sir. You said why takeoff has not occurred on 4th. Hmm. You said why it has occurred on 9th. Yes, sir. I'm just trying to answer this. For this, earlier period runway Hmm. might have missed to trade on higher side. 64, 64. This has been coded. इसकी लैंग्वेज ये है already there are some flights also in runway. If this itself is not taken off 554, it was missed. So now it will take off only above 554. Okay. Give me some time. Tomorrow I'll explain, better way. I'm not Okay. able to explain right now. Okay. Okay. Not a problem, sir. But इसके पीछे का लॉजिक ये है कि we need to find in old dates, earlier dates, and if there are runways are there, and some price wherever it is runway is missed. They say here it has reversal sell has occurred, but it is in runway. तो यहाँ पे जो 5% की बात है वो शायद मिल जाएगा, but it will land further, and suppose that landing price 469 or 483 is coming above FC 100%, then that FC 100% has to trade in that plan. And if any stoppage is to sell in action or reversal sell in coming period, even if PCDS occurrence period trades on lower side, but if this 469.55 is not traded on lower side, it will not land, because first this has to land, then only the further occurrences can land. ठीक है ना? This we'll see tomorrow with studies. कल वापस लेंगे इसी webinar में. Yes, sir. Yes, sir. Not a problem. कि आप लोगों को सीखना नहीं पड़े, समझना नहीं पड़े, इसलिए मैंने कोडिंग ही करा दी. बट आई अप्रिशिएट कि जो एकदम समझ के करना चाहते हैं तो उनको जवाब देना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है. बट आई विल एक्सप्लेन टुमारो. Okay. न्यूज़. हाँ कमलेश भाई. जय श्री कृष्ण सर. जैसे कि सर पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी, आपने बोला था कि ऐसी क्वेरी वेबिनार में नहीं पूछते, फिर भी मैंने जिद करके थोड़ा एक्साइटेड होकर पूछ लिया, तो आई एम वेरी सॉरी. कल की बात ना 261 वाला थोड़ा मैं कह रहा हूँ है ना, व्हाट इज हैपनिंग नाउ में रहना चाहिए. ये लॉन्ग टर्म व्यू ये सब है ना, सीखना समझना और उसके लिए टेम्परामेंट बनाना ना, वो एकदम बहुत डिफरेंट है. दिस इज द रीजन नो. सर कल आप बोल रहे थे, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया, फिर वो मैंने आपको बोल दिया. मेरी कमी है, मेरे में कमी है, आप लोगों की कमी नहीं है. मैं ये नहीं समझा पा रहा हूँ कि व्यू होता है, ट्रेड होता है.
व्यू एक बैक ऑफ द माइंड रख सकते हैं, बट जब वो व्यू रिफ्लेक्ट होता है ट्रेड में, एक्चुअल ट्रेड में, तब जाके वो ट्रेड होता है। व्यू बोल दो, ऐसा समझ दो, या कुछ भी कह दो, बट व्यू इज नॉट ट्रेडेबल। समझ जो है इज नॉट ट्रेडेबल। ट्रेडेबल तो जब वो ट्रेड अकर होगा तब होगा। कोई भी एक ट्रेड सेटअप जो भी हम फॉलो कर रहे हैं, उस ट्रेड सेटअप में वो व्यू मैच होना, लेकिन वो हमने जो बात की वो भी सही होगी, लेकिन कब होगी? when it has to occur, no, in one of at least any one of the trade setup whatever we are knowing, वहां पे सेलिंग आएगी तब होगा। दैट्स व्हाई इसलिए हम लास्ट 2-3 साल से लॉन्ग टर्म व्यू की ये सब बात करना कम कर दिए हैं। ठीक है, नहीं हो गया, चलो कोई बात नहीं। और सर ये अभी आप किसी को कॉल इंडिया में समझा रहे थे तो उस पर आरएमएसएल हायर जोन लिखा है, उसने राइजिंग 261 ट्रेड कर दिया है, तो और कुछ टाइमिंग पीरियड के हिसाब से प्रॉब्लम है कि आज क्या जी 144.80 का है ये, शायद मैंने देखा, शायद नहीं, श्योर हूं मैं। वन 144.65 है ना, और सर लेकिन 261.8 हाई, फ्रेश सपोर्ट कहाँ दिया है? सर हाई 80 का है, शायद इसमें आया नहीं है। ये एनएससी का हाई है भाई, डायरेक्ट वेबसाइट से आता है ये भाव। आपने जो टर्मिनल पे देखा होगा ना, वो रॉन्ग पंचिंग ऐसा कुछ होगा। नहीं नहीं सर, वो ट्रेड किया। ओके सर, मैं देख लूंगा, लेकिन आई एम मच श्योर सर, वो 144.75 आ रहा था, लेकिन मैंने 80 का वो अलर्ट रखा था, तो कोई बात नहीं, चलो कल बात। और अगर होगा तो भी हम इसको 144.30 को नहीं पकड़े क्या? 144.30 ट्रेड, 144.30 का नेक्स्ट लेवल कहाँ ट्रेड किया है? वो तो सर वो कल का पीसीआर भी, हाँ वो तो अलग बात है सर, लेकिन तो अलग बात नहीं है, यही बात है ना। अभी का ही ले रहा हूँ, कौन सा 5 साल पुराना भाव निकाल रहा हूँ। नहीं अभी का ही भाव। मैं तो खाली आज का 261 ट्रेड कर दिया है, आरएमएसएल हायर जोन नहीं है, मैं खाली ये बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है, जिस दिन ये 144.30 ट्रेड कर लिया ना, 5% 10% नहीं हो जाएगा। हाँ ट्रेड तो करने, अभी रिसेंट पीसीसीबी भी 144.45 है, उसको तो ट्रेड करना जी है। जी 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 सर, ठीक है ना। और वो आप बाइंग का जजमेंट और 261 वाला केस स्टडी भी बता रहे थे, तो उसमें भी आज का ही आपका ही मैसेज था किसी शिक्षित का, उसमें एचडीएफसी का बेस्ट एग्जांपल है। एचडीएफसी क्या वो 261 आ गया था ना, और वो फार्मा में, और आप समझा रहे थे वीकली वाले बायोकॉन वाले शिक्षित को 261.8 करता तो ये 8-9 महीने से क्यों मैं स्नैक्स एंड लेडर्स बना रहा हूँ यार? नहीं नहीं, वो आप बाइंग जजमेंट बोल रहे थे ना, तो ये HDFC has worked out in weekly time frame 261.8 because it is trading with ladder there. मल्टीपल स्नैक आया ही नहीं, सालों हो गए। नहीं सर, कोई बात नहीं है, तो खाली मैं बोल रहा था कि अभी आप बाइंग जजमेंट के साथ 261 का इंपोर्टेंस बोल रहे थे ना, तो आज डेली में बाइंग जजमेंट है एचडीएफसी में, और 261 आके वो कितना बड़ा है, खाली वो बराबर है। FC 261.8 आके बढ़ा है। हाँ, लेकिन वो बाइंग के जजमेंट में था ना, इसलिए। बाइंग के जजमेंट में था, इसीलिए जी अब समझा दिया कमलेश भाई, नीति और नियम के साथ समझा दिया। जी, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो वो बजा तो ही बहुत नहीं अच्छा किया सर, कितने दिनों से सुनने चाहते थे, वो तो नए पार्टिसिपेंट लकी है कि आज आपने स्टोरी बहुत बढ़िया की है सर। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर दैट आल्सो। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। वेबिनार देखो, आज का डेली हाईलो क्लोज तो अपडेट हो गया है, और अवरली हाईलो क्लोज आएगा तब अपडेट होगा। जब तक नहीं आएगा तब तक न ये पीसीएस पीसीआर अपडेट होगा, न सपोर्ट इश्यूज लॉग अपडेट होगा, न ट्रेड सेटअप पेजेस अपडेट होंगे। बट द मोमेंट इट कम्स, 12 बजे भी आया तो भी अपडेट हो जाएगा, 2 बजे भी आया तो भी अपडेट हो जाएगा। एंड
हो जाएगा बस, आते ही फिर वो 5 मिनट का ही काम है, देन प्रोसेस जो होती है वो डेट विल टेक इट्स ओन टाइम। इसीलिए कल ही मैं किसी से कह रहा था, ये सपोर्ट एक और क्वेरी थी मैसेज के थ्रू, आई मिस टू अटेंड। रोमिल गए क्या? हाँ, है ना, क्यों हैंड रेज नहीं है रोमिल? यस सर। आपकी क्वेरी थी, आपका मैसेज है, किसमें है, क्या है? सर ICICI बैंक डेली। तो आपका हैंड रेज क्यों नहीं है? सर हैंड रेस था सर। नहीं है ना? ओके, मेरे तरफ से तो हैंड अप है। हाँ, हो सकता है टेक्निकल। ICICI बैंक में आ गया मैं। एक और यस सर। उर्वशी सर की। सर सॉरी हम्म, सर, ये 2 स्नेक से चल रहा था, एक्चुअली 3 स्नेक्स, और ये अपना TA और CTA भी इसने ट्रेड कर दिया हम्म, सर। फिर वंस ये 22 को उसने TA CTA ट्रेड कर दिया, तो आई वेटेड फॉर द PCR the next day to trade. So about at 6:20, I shorted this stock. which PCR? So 623.65. Okay, now let us be with 22nd February. Yes, Prices sir. are rising or falling? Falling, sir. When it will continue to fall further? Below 605.85. When it will stop falling and start rising? Above 623.65. So whenever it comes to 623.65, from there it has to trade with one resistance. Yes, Then sir. we can keep the stop